Hello guys, welcome back. I am DP sir, and in the previous class we have discussed about what a cell is and the types of cells. And for a pure definition, I can define a cell as a device in which some kind of electrochemical change is brought about. So the electrochemical change is of two types. In the first type, you are converting chemical energy into electrical energy, and in the second type you are converting electrical energy into chemical energy. We already have discussed all these phenomena, but still I think this is a very important concept, so I have to recap all those we have read in a very clear manner, so that everything you can understand and we can proceed to the further section. So depending upon which kind of electrochemical change is preceding inside your cell, the cell can be divided into two types. The first one is electrochemical cell and the second one is electrolytic cell. In electrochemical cell, we are converting chemical energy into electrical energy. That means we are proceeding some chemical reaction, and through that chemical reaction we are creating or producing electricity. I have already told you all these things, and we will discuss electrolytic cell uh, in a next class, okay? But you must know what a electrolytic cell is. Electrolytic cell is nothing but where we are converting the electrical energy into chemical energy. It's just like electrolysis, okay? Electrolysis is a process where we decompose the chemicals or the electrolytes in their fused state or in their aqueous state when we pass electricity through them. So here also we are doing that. By passing electricity, we are carrying out some kind of non-spontaneous reaction, okay, and that kind of cell is considered as electrolytic cell, and we will discuss that in a very clear manner in a separate class. So I have already told you that if you will take example of electrochemical cell, then we can take galvanic cell and Daniell cell. But nowadays we are not considering Daniell cell, we are not practically using that cell as a electrochemical cell. We are mostly use galvanic cell for the requirement of electrochemical cell. That's where that's why we call galvanic cell as electrochemical cell also. You must not be confused with that, okay? Galvanic cell is one of the example of electrochemical cell, but as it is predominantly used as the electrochemical cell, so sometimes it is also called as the electrochemical cell itself. So I want to discuss the construction and function of galvanic cell. आमे प्रीवियस क्लास रे याको डिटेल्स रे पढ़ी सारिथिलु मु जानिछि, फिर भी आई थॉट आई मस्ट टेल यू अगेन, कहीं ना एटा बहुत इम्पोर्टेंट, तेणु ये जिनसटा तुम माइंड भितर पूरा पूरी मुखस्थ हो रही दरकार, से आई वांट बदर मु तुमको आउ थे जिनसटा बुझेदेवी. जस्ट रिकेप करू, तुम्हें भी रिकॉल करने
चेष्टा कर जहाँ जहाँ पढ़ाई तो कौन कहला जे एठी कौन हम ना गोटे रिडक्स रिएक्शन को इनडायरेक्टली प्रोसीड करा हबो। ठीक अच्छे तो रिडक्स रिएक्शन जेटा डायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन होतला डायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन से कौन होतला ना गोटे भेसेल रे होतला तो ताको आम इनडायरेक्टली करिया पई कौन करूचे ना दुईटा सेपरेट भेसेल नहीं कि से रिएक्शन टाको आम प्रोसीड करूचे। ठीक अच्छे कि नहीं तो यही फेनोमेना टाको आम आउ थोड़े भल कि ना ये देखा ड्र करके मुझे तुमको बुझेबी। देख तो गाल्वानिक सेल कंस्ट्रक्शन दुईटा भेसेल निया हबो गोटे भेसेल जो थे कि ZnSO4 सॉल्यूशन निया हबो ZnSO4 सॉल्यूशन जहार की कंसंट्रेशन है 0.01 मोलार से भितर मु गोटे जिंक रड को डीप करी है एटा जिंक रड बा ताको आमे कहूचे जिंक इलेक्ट्रोड आउ गोटे भेसेल निबी से भेसेल ले CuSO4 सॉल्यूशन निया हबो 0.01 मोलार रो सेठी आउ गोटे मु रड डीप करी सेटा हला कॉपर रड बा मु ताको कहबी कॉपर इलेक्ट्रोड। तो या परे मु कौन करी ना गोटे गाल्वानोमीटर नेबी गाल्वानोमीटर रो गोटे एंड को जिंक रड सहित कनेक्ट करी आउ गोटे एंड को कॉपर रड सहित कनेक्ट करी। तो ये जो गाल्वानोमीटर को मु कनेक्ट करिया पई जो वेयर नेली सेटा कॉपर रे तैयारी कौन कॉपर वेयर। ठीक अच्छे कॉपर वेयर कहीं ना मु जानी ये जो रिएक्शनटा ये हम जिंक रड रु कॉपर रड आड़ को इलेक्ट्रॉन फ्लो हम। ठीक अच्छे से मु जदि कॉपर वेयर यूज करी ताहले मोर इलेक्ट्रॉन फ्लो रे किसी भी कॉम्प्लिकेसी आसीबो नहीं। तो कॉपर वेयर देकी गाल्वानोमीटर सहित एटा हला गाल्वानोमीटर कॉपर वेयर देकी गाल्वानोमीटर सहित मु एक्सटर्नल सर्किट टाको कंप्लीट कली। एबे कौन करा हबो ना गोटे यू शेप रो ट्यूब निया हबो जहाँ भितर कि किसी इलेक्ट्रोलाइट थिबो आउ सेटा को कौन पे यूज करा होचे ना दुईटा भेसेल को इंटरनली कनेक्ट करिवा पाई। ठीक अच्छे आउ एटा को आमे कौन बोली कहूचे सॉल्ट ब्रिज। तो जिते मु एक्सटर्नल सर्किट को कनेक्ट कली से कौन हम आगे टिके मु कही रखे यही जो सेलटा को आमे कहूचे जिंक कॉपर सेल। ठीक अच्छे जिंक कॉपर सेल कहीं ये आम जिंक रड आउ जिंक इलेक्ट्रोड आउ कॉपर इलेक्ट्रोड को यूज कर जिंक कॉपर सेल बोली कहा जाए आउ इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ गाल्वानिक सेल है। तो जिते मु एक्सटर्नली माने कनेक्ट करदेली जिंक रड आउ कॉपर रड को गोटे कॉपर वेयर देकी से कौन हम ना जिंक रड रे जो एटम गुड़ा अच्छा जिंक एटम से माने कौन करिवे ना से माने इलेक्ट्रॉन लूज करिवे से माने इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ हेबे। भल किना शुणु थाउ याकू बारंबार शुण। तो जिंक रड रे कौन हम जिंक एटम गुड़ा इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ आयन हेबे आउ कौन हम Zn2+ आयन गुड़ाक ZnSO4 सॉल्यूशन ले डिजल्व हो जिवो जहाँ फल कौन हम जिंक रडटा आस्ते आस्ते डिजल्व हम माने यार मास कमी कमी जीव किछि समय परे
तुम्हें सेटा लक्ष्य कर जदि तुम प्रैक्टिकल कर देखा तुम्हें देखिपर आस्ते आस्ते जिंक रडटा छोट हो जाऊँगी तार मास कमी कमी जाऊँगी जिंक गुड़ाक डिजल्व हो जाती Zn2+ होगी। तो यही जगह कौन है ना जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कला इलेक्ट्रॉन लूज माने ऑक्सीडेशन। तो या आम कौन कौचे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक अच्छे। तो ये दीटा को हाफ सेल बोली कहूँ एटा गोटे हाफ सेल एटा गोटे हाफ सेल ए दी जण मिसिकी गोटे कंप्लीट सेल करुँच। ठीक अच्छे ना नहीं। तेणु ए लेफ्ट साइड रे जिंक रड जेठी अच्छी सेठी ऑक्सीडेशन होची कहूचे ऑक्सीडेशन हाफ सेल आ सेठी जो रिएक्शनटा होची ताको आमे कहूचे ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। ठीक अच्छे। यही साइड रे कौन होची ए जो इलेक्ट्रॉन जिंक छाड़िला सीए सर्किट देकी आसला एपटे कॉपर रड देकी ए सॉल्यूशन ले एंट्री कला ए सॉल्यूशन ले किए अच्छी CuSO4 माने ये कौन अच्छी Cu2+ से Cu2+ कौन कला ना से इलेक्ट्रॉन को गेन कला के इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन को जिंक लूज करी। ठीक अच्छे। तो से इलेक्ट्रॉन को सी गेन करके सी कौन है Cu2+ रु Cu सॉलिड फॉर्म को आसला। तो सॉलिड फॉर्म को आसला पर से कौन करिवो ना जो कॉपर रड उपरे सी धीरे धीरे डिपोजिट हे जीवो। तेणु आमर एक्सटर्नाल सर्किट को कनेक्ट कला परे आमे देखिबा आस्ते आस्ते एपटे जिंक रड रो मास कमी कमी चली बा जिंक रडटा छोट हो चली एपटे कॉपर रड रो मास बढ़ी बढ़ी चली बा कॉपर रडटा आस्ते आस्ते मोटा हो चली मोटा हो कहीं चलची ना ता उपरे ए जो Cu2+ आयन गुड़ाक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu मेटाल होगी ता उपरे आस्ते आस्ते डिपोजिट हो चली। ठीक अच्छे। तेणु यही साइड रे कौन होची Cu2+ इलेक्ट्रॉन गेन करुची माने कौन होची रिडक्शन होची। तेणु एटा को आमे कहूचे रिडक्शन हाफ सेल। बुझि पारलो। तो लेफ्ट साइड रे ऑक्सीडेशन होची सेतपय ताको आमे ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहूचे राइट साइड रे रिडक्शन होची सेतपय आमे कहूचे रिडक्शन हाफ सेल आ एई साइड रे जो रिएक्शन टा हुए ताको कहूचे रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन हबो। इजीली बुझी पारलो। तो एबे आमे देखिबा से ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन आउ रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन कौन। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन ले कौन होची जिंक सॉलिड थिला सीए Zn2+ को कन्वर्ट हैला एक्व स्टेट रे देखि दुईटा इलेक्ट्रॉन लूज कला। ठीक अच्छे। रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन कौन रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन एठी कौन होची कॉपर 2+ जे कि एक्व स्टेट रे थिला सीए ए जो दुईटा इलेक्ट्रॉन को गेन कला देखि कॉपर सॉलिड फॉर्म को आसला। ठीक अच्छे। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन ये रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन ताले दुईटा हाफ सेल रिएक्शन विषय रे आमे पढ़िले। एबे ताले कंप्लीट सेल रिएक्शन कौन जदि आमे ए जन को मिसई दबा दीटा हाफ सेल रिएक्शन को मिसई दबा ताले आमे कंप्लीट सेल रिएक्शन पाइबा बा ताको आमे खाली रे कहू सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन ताले कौन सेल रिएक्शन हबो देखो ए दुटा को मिसेबा माने कौन Zn + Cu2+ हैला एमती लिखा हम ताकू Zn सॉलिड + Cu2+ एक्वस। ठीक अच्छे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स हैला गिव्स एपटे देखो एमान को मिसे दबा Zn2+ एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड + 2 इलेक्ट्रॉन। तो दी साइड रे डीटा इलेक्ट्रॉन अच्छी तो ये डीटा को आमे कैंसल कर देले ताले सेल रिएक्शन टा कौन हम Zn सॉलिड + Cu2+ एक्वस गिव्स Zn2+ एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड।
हम बुझीपार सबू। तो आमको जदि दीटा हाफ सेल रिएक्शन देइथिबो ताले आमे सेल रिएक्शन बाहर करि परिबा, बा जदि सेल रिएक्शन टा खाली दिया हेतिबो ताकू देखिकी आमे दीटा हाफ सेल रिएक्शन भी लिखि पारिबा। कंप्लीट है ये आम ये बुझी पारे। ताले ये जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल आम कौन देखिले ना जिंक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करुच्ची, रिडक्शन हाफ सेल कपर इलेक्ट्रॉन मान को गेन करुच्ची। ठीक अच्छे। तो ये आम जानिले जे कपर रो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अच्छी, कपर से इलेक्ट्रॉन को टाणीबार टेंडेंसी रखी। जदि सी इलेक्ट्रॉन को टाणी पारुची, इलेक्ट्रॉनटा है नेगेटिवली चार्ज, ताहले कपरटा कौ चार्ज होइतिबो पॉजिटिवली चार्ज होइतिबो। ठीक अच्छे ना। जदि सी है पॉजिटिवली चार्ज से आम कहे कैथोड। ठीक अच्छे। जदि कपरटा है पॉजिटिवली चार्ज ताहले जिंकटा कौन हम ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज हम। जदि सी नेगेटिवली चार्ज है से आम कहे एनोड। बुझिपार। आई थिंक ये तुम क्लीयर हो पूरा पूरी कहीं कैथोड कहूँ, कहीं एनोड कहूँ है। आउ गोटे जिनस देख, एनोड पाखरे सबु बेले कौन हो ऑक्सीडेशन होची, आ कैथोड पाखरे कौन होची रिडक्शन। बहुत इंपोर्टेंट यहाँ जानिबार। गोटे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मन रख, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बहुत डिफरेंट। तेणु यही वार्डटा सब मन रख। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बा गोटे गाल्भानिक सेल एनोड पाखरे सब बेले ऑक्सीडेशन हुए, आ कैथोड पाखरे सब बेले रिडक्शन हुए। आउ इलेक्ट्रॉन एनोड आड़ू कैथोड आड़ को फ्लो हुए। जदि इलेक्ट्रॉन एनोड रु कैथोड आड़ को फ्लो होची ताहले इलेक्ट्रिसिटी कैथोड रु एनोड आड़ को फ्लो हम। ठीक अच्छे। एबे आई थिंक सबू जिनस क्लीयर हो गला। आमे पूरा पूरी गाल्भानिक सेल कंस्ट्रक्शन पढ़िलु, तार फंक्शन पढ़िलु, केमितिका कौन होची ताकू क्लीयरली बुझिलु। तो एबे आमे पढ़िबा सेल रिप्रेजेंटेशन। कौन सेल रिप्रेजेंटेशन। ए सेल को केमितिका रिप्रेजेंट करा जाउची। सेल रिप्रेजेंटेशन। तो ये आगे टिके देख, आम जो गोटे सेल लिखुचे, गोटे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बा गोटे गाल्भानिक सेल, लेफ्ट साइड रे किए रोची ऑक्सीडेशन हाफ सेल बा एनोड है, राइट साइड रे किए रोची रिडक्शन हाफ सेल बा गोटे कैथोड, मझिरे किए रहिला सॉल्ट ब्रिज। ठीक अच्छे। तो गोटे सेल को रिप्रेजेंट कला बेले लेफ्ट साइड रे रखा जाए एनोड को, मझिरे लिखा जाए सॉल्ट ब्रिज को, राइट रे लिखा जाए कैथोड को। ठीक अच्छे। एनोड केमितिका पुणी एक्जाक्टली लिखा जाए ताकू ना प्रथम लिखा हम एनोड इलेक्ट्रोड। ठीक अच्छे। तापर गोटे स्लैश दिया हम बा गोटे गार चिन्ह एमतिका, तापर लिखा हम एनोड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक अच्छे। तापर सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज को केमतिका लिखा जाए ना एमितिका पैरेलल दुईटा लाइन को पैरेलली देले या अर्थ है सॉल्ट ब्रिज। एटा है सॉल्ट ब्रिज रो सिंबल। ठीक अच्छे कि नहीं। तापर ये कौन रहिबो प्रथमे कैथोड इलेक्ट्रोलाइट, तापर गोटे स्लैश देकी कैथोड इलेक्ट्रोड। ठीक अच्छे। तो आमे देखिबा आमे जो जिंक कपर सेलटा नहीं थिले याकू केमितिका लिखि परिबा। देखो तो लेफ्ट साइड रहा एनोड,
राइट साइड रहा कैथोड। तो आम आगे एनोड इलेक्ट्रोड एनोड इलेक्ट्रोलाइट लिखा। तो एनोड इलेक्ट्रोड किए जिंक रड। तो आम लिखिले जिंक सॉलिड। ठीक अच्छे। एनोड इलेक्ट्रोलाइट किए से कौ इलेक्ट्रोलाइट यूज कराई जिंक सल्फेट ZnSO4। ठीक अच्छे। तो ये आउ जिंक सल्फेट लिखा जाए ना से जो आयनटा अच्छी ताकू लिखा जाए Zn2+ एक्वस। ठीक अच्छे सरला ये एनोड इलेक्ट्रोड तापर एनोड इलेक्ट्रोलाइट सरीगला। तापर ये कौन यहाँ सॉल्ट ब्रिज। ठीक अच्छे। तापर एपटे कौन लिखा कैथोड इलेक्ट्रोड आउ कैथोड सॉरी कैथोड इलेक्ट्रोलाइट आउ कैथोड इलेक्ट्रोड। तो कैथोड इलेक्ट्रोलाइट कोटा CuSO4। CuSO4 माने कौन Cu2+ एक्वस। ठीक अच्छे स्लाश देले। तापर कैथोड इलेक्ट्रोड कोटा कपर सॉलिड स्टेट अच्छी हम। तो आई थिंक तुम्हें सेल रिप्रेजेंट करवा इजिली शिखी जाइथिबो एठू। तो एटा लिखला बेले कॉन्सेंट्रेशन भी मेंशन करा जाए इलेक्ट्रोलाइट मानकर। जेमितिका आम ये ZnSO4 को 0.01 मोलार नहीं। तो यहाँ लिखला बेले या साइड रे लिखाई ब्रैकेट देकी 0.01 मोलार आउ या भी 0.01 मोलार नहीं। तो ये भी लिखा हम 0.01 मोलार। तो एक्जाक्टली एमितिका गोटे सेल रो रिप्रेजेंटेशन करा जाए। ठीक अच्छे। तो आई होप तुम्हें यहाँ इजिली बुझी जाइथिबो। या परे आमे पढ़िबा सॉल्ट ब्रिज कौन एक्जाक्टली तार काम कौन। सॉल्ट ब्रिज पिला माने जेमती हम कहली सॉल्ट ब्रिज गोटे हैला यू शेप रो गोटे ट्यूब जहाँ भितर गोटे इलेक्ट्रोलाइट थिबो आउ से ट्यूब रो एंड परस प्लग रे कनेक्ट होइथिबो जहाँ फल कि से जो इलेक्ट्रोलाइट ता भितर थिबा इलेक्ट्रोलाइट डिफ्यूज हेई पारिबो। ठीक कि नहीं क्या भितर को तुमर जो दीटा भेसेल अच्छी भितर को डिफ्यूज हो पारिबो तांको इलेक्ट्रोलाइट। किंतु सेटा केमितिका हुए कहीं हुए ताको आमे डिटेल्स रे पढ़िबा। नॉर्मली से सेमितिका डिफ्यूज हबो नाही से केवल दरकार पड़िले ही डिफ्यूज हबो। तो सॉल्ट ब्रिज भितरे आमर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करा जाए नॉर्मली कौन यूज करा जाए KNO3 और KCl। ठीक अच्छे। KNO3 किंबा KCl को कौन पाई यूज करा जाए ना एठी जो KCl रे जो पोटासियम हो किंबा क्लोरीन हो ये दी जन जाकर इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी बा आयोनिक मोबिलिटी समान। तेणु जेकोसी इलेक्ट्रोलाइट को मैं यूज करिबो सेमानकर जो काटायन आउ आनायन थिबे सेमानकर आयोनिक मोबिलिटी इक्वाल हेतिबा दरकार। जदि इक्वाल न हेतिबो ताहले सॉल्ट ब्रिज रे ताकू यूज करा जाई पारिबो नाही। तेणु KCl KNO3 को मैक्सिमम टाइम रे सेथ पई यूज करा जाए कहीं सेमानकर आइडेंटिकल माने तांकर जो काटायन आउ आनायन रो आइडेंटिकल आयोनिक मोबिलिटी थाए। एति कॉन्सेप्ट क्लियर हैला। यार काम कौन ये दुईटा हाफ सेल को जो दुईटा हाफ सेल आमर अच्छी दुईटा हाफ सेल को इंटरनली कनेक्ट करे बा इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करे। जेमतिका कॉपर वेयरटा एक्सटर्नल सर्किट को कंप्लीट कला ये इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करे। ये आमर जो सॉल्ट ब्रिज रे थिबा इलेक्ट्रोलाइट दीटा हाफ सेल रे थिबा जो इलेक्ट्रोलाइट मानक सहित केमिकाली रिएक्ट करती नाही। पिला माने मु एगुडा लेखु नाही तुम्हें याकू नोट खातारू जदि पारुछ एबे नोट खाता खोलिकी टिके टिके देख मु जहाँ कहूँ मु तो बहुत स्लो रे कहूँ टिके वीडियो पॉज करिकी तुम्हें आराम से ताकू देखिकी ता सहित टैली करिकी पढ़ हैला। तो आउटे कौन कहली जे या भितरे
KNO3 बा KCl सॉल्ट यूज करा जाए एज ए इलेक्ट्रोलाइट। आउ से KNO3 हो बा KCl हो, ये जो सॉल्ट ब्रिज भितर अच्छी इलेक्ट्रोलाइटा सीए ये जो दुईटा हाफ सेल ऑक्सीडेशन हाफ सेल आउ रिडक्शन हाफ सेल तांको भितर जो इलेक्ट्रोलाइट अच्छी ZnSO4 बा CuSO4 सेमान सहित केमिकाली रिएक्ट करे नाही। आउ सॉल्ट ब्रिज रो काम कौन ना सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रालिटी को मेंटेन करे। कौन करे? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रालिटी को मेंटेन करे। सीए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करिवारे हेल्प करे नाही, किंतु इलेक्ट्रिसिटी केमितिका स्मूथली प्रोड्यूस ही पारिबो सेइथिरे हेल्प करे। दुईटा अलगा अलगा जिनस। सीए निजे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे नाही, किंतु सीए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करिबारे हेल्प करे। आ से जो प्रोसेस रे हेल्प करे ताकू कौन कहती? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रालिटी मेंटेन करे सीए। ठीक अच्छे, तो केमितिका करे सेटा देखिबा। देख जते बेले आमे सर्किट टाकू कंप्लीट कले तो एठी कौन हैला? जिंक रॉड रु Zn2+ आयन फॉर्मेशन हैला। तो किछि समय परे एई सॉल्यूशन ले Zn2+ रो आयन बहुत अधिका हो जिवो। जेहेतु Zn2+ गोटे पॉजिटिव आयन आउ कंसंट्रेशन गोटे पॉजिटिव आयन लो अधिका हो जाउची, ताहले सी इलेक्ट्रॉन फ्लो को करिया पई दबो नाही इजीली। तेणु आमको कौन करिया पई पड़िबो? जतिकी Zn2+ आयन प्रोड्यूस हैला ताकू न्यूट्रलाइज करिया पई पड़िबो। न्यूट्रलाइज केमितिका करिबा ना आमर सॉल्ट ब्रिज भितरे जेकोसी इलेक्ट्रोलाइट आमे नहींचे, धर KCl नहींचे। ठीक अच्छे, तो KCl ले कौन अच्छी? K+Cl-। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल ले जते बेले Zn2+ रो परिमाण बढ़ीगला, काटायन रो परिमाण बढ़ीगला, सेते कौन हम ना सॉल्ट ब्रिज भितरे थिबा नेगेटिव आयन गुड़ाक रिलीज हम। कहा भितर को रिलीज हम ना ये जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल भितर को रिलीज हम, जहाँ फल कि सीए ये जो पॉजिटिव आयन Zn2+ सहित मिसिकी ताकू न्यूट्रलाइज करि पारिबो। ठीक अच्छे, तो सेमितिका रिडक्शन हाफ सेल ले कौन अच्छी? CuSO4 माने Cu2+ SO4-। तो रिडक्शन हाफ सेल ले कौन होची? कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड को बा कॉपर मेटालिक फॉर्म को पळौची, जहाँ फल कौन होची? SO4- रो बा नेगेटिव आयन रो परिमाण बढ़ी जाउची। तो सेई नेगेटिव आयन रो परिमाण को न्यूट्रल करिवा पई आमे जो नेइथिले KCl सॉल्यूशन सॉल्ट ब्रिज भितरे, तो सेठी सोडियम आयन गुड़ाक बा पॉजिटिव आयन गुड़ाक कौन हम ना रिडक्शन हाफ सेल भितर को डिफ्यूज हम, जहाँ फल से K+ जाइकी SO4 जो 2- आयन गुड़ा को कौन करिवो ना न्यूट्रल बा न्यूट्रलाइज करि पारिबो। तेणु एठू तुमे जानि पारलो जे सॉल्ट ब्रिज रो काम कौन। मेनली यार फंक्शन हैला इलेक्ट्रिकल न्यूट्रालिटी को मेंटेन करिवो। सो पिला माने आजिरो क्लास एतिकी रहिला। नेक्स्ट क्लास रे आमे पढ़िबा जे डानियल सेल कौन। डानियल सेल पढ़िला परे पढ़िबा आउ किछि अलगा प्रकार सेल अच्छी गाल्वानिक सेल से को पढ़िबा। तापरे आमे सेल पोटेंशियल EMF ये सब जिनस को पढ़िबा। आस्ते आस्ते करी सब जिनस को जीवा। आई होप आमे बहुत धीरे धीरे जाऊचु आउ तुमे से अनुसार वीडियो देखी सब जिनस बुझी पारुथुबो। आ मु आशा करे तुमे टीचर मान को ठीक से कोऑपरेट करूथुबो, ठीक टाइम रे वीडियो देखी ठीक टाइम रे नोट मेंटेन करी बारंबार वीडियो को देखी देखी सब जिनस को बुझुथुबो। जदि तुमर किछि डाउट रही जाउची तथापि यू कैन डायरेक्टली कंसल्ट मी। ओके
मु सबु बेले तुमरो सबु डाउट को क्लियर करिया पई प्रस्तुत अछि। So guys, thank you for watching this video and bye for today class.